تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف مذہب کی نہیں ہوتی، وہ عقل، طاقت اور انسان کے غرور کو چیلنج کرتی ہیں۔ یہ قصہ بھی ایسا ہی ہے۔ ایک طرف دنیا کی سب سے طاقتور عورتوں میں شمار ہونے والی ایک ملکہ، جس کا تخت، جس کی سلطنت اور جس کا رعب عرب سے افریقہ تک پھیلا ہوا تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم میں صرف انسان نہیں بلکہ جن، پرندے اور قدرت کی قوتیں بھی تھیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عظیم تصادم کی شروعات نہ کسی جنگ سے ہوئی، نہ کسی فوج سے، بلکہ ایک چھوٹے سے پرندے ہدہد سے ہوئیں۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو لوگوں کی باتیں سمجھتا تھا اور دور دراز سے پیغام لے کر آتا تھا۔ یہ پرندہ نہ تلوار رکھتا تھا نہ تاج، لیکن اس کے پاس وہ خبر تھی جو ایک پوری قوم کی تقدیر بدل سکتی تھی، اور اس قوم کی سربراہ تھی ملکہ بلقیس۔ ایسی عورت جو عقل مند تھی لیکن ایک بہت بڑی حقیقت سے غافل تھی۔ وہ سورج کو سجدہ کرتی تھی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، نہ کسی قوم کی گھڑی ہوئی کہانی۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے قرآن پاک نے محفوظ کیا ہے تاکہ ہر دور کا انسان یہ سمجھے کہ طاقت کس کی ہے اور حق کہاں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک یہ قصہ ایسے ہی نہیں سناتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ عام کہانی نہیں بلکہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو اس قرآن کے ذریعے سب سے بہترین قصے سناتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آپ ان باتوں سے واقف نہ تھے، اور آج ہم قرآن کے بیان کردہ اسی بہترین قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ قصہ ہے ایک نبی بادشاہ کا، ایک عقلمند ملکہ کا، ایک پرندے کی جرت، اور اس سچ کا کہ اصل طاقت نہ تخت میں ہوتی ہے نہ فوج میں، بلکہ حق کو مان لینے میں ہوتی ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے تخت کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ ملکہ اپنے تخت سے اٹھیں اور اس نبی بادشاہ کے سامنے آئے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ پرندہ جو اتنی بڑی خبر لایا، وہ ہدہد آخر تھا کون؟ اور وہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ ایک دن حضرت سلیمان نے کسی ضروری مسئلے پر بات کرنے کے لیے اپنی ساری فوج کو جمع کیا۔ یہ دن بالکل عام دنوں کے جیسا ہی تھا۔ ساری فوج جمع تھی۔ پرندے فضا میں ایک ترتیب سے منڈلا رہے تھے۔ سب کچھ خاموشی سے ایک نظم کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسی خاموشی میں اچانک ایک خلا محسوس ہوا، جیسے کسی تصویر سے ایک اہم رنگ غائب ہو جائے۔ پرندوں کی قطار میں ایک پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کوئی عام پرندہ نہیں تھا، وہ پرندہ خبریں لاتا تھا۔ دور دراز علاقوں میں جاتا اور وہ باتیں دیکھ کر آتا جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا نام تھا ہدہد۔ جب لوگوں کو احساس ہو کہ ہدہد موجود نہیں ہے تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، وہ کہاں گیا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد یہ بات حضرت سلیمان تک جا پہنچی، جن کے حکم پر یہ ساری فوج کھڑی تھی۔ انہوں نے ایک نظر پرندوں کی صف پر ڈالی اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ ہدہد یہاں نہیں ہے۔ یہ غیر حاضری معمولی بات نہیں تھی۔ یہ سوال پیدا کرتی تھی، کیا وہ کہیں رک گیا؟ کیا کسی مشکل میں پھنس گیا؟ یا وہ کسی ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جہاں سے اسے لوٹنے میں وقت لگ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے، حضرت سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمایا، مجھے ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ غیر حاضر ہے؟ سب خاموش رہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ اسی دوران فضا میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ دور سے ایک پرندہ تیزی سے آتا دکھائی دیا۔ وہ ہدہد تھا۔ لمبے سفر کی تھکن اس کے پروں سے جھلک رہی تھی۔ وہ سیدھا نیچے اترا اور سب کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کو پورا ماحول ساکت ہو گیا۔ ہدہد نے سر جھکایا اور بولا، اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں جس کے بارے میں یہاں کسی کو خبر نہیں۔ ہدہد نے بتایا کہ اس نے ایک ایسی سرزمین دیکھی ہے جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، ایک ایسی عورت جس کے پاس بے شمار دولت، لاکھوں کی تعداد میں فوج اور ایک بہت بڑا سونے کا تخت ہے۔ اس نے بتایا کہ اس عورت کی قوم کسی انسان کو نہیں
किसी बुत को नहीं बल्कि सूरज को सजदा करती है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। यहां से किस्सा एक नए मोड़ पर आता है, क्योंकि अब सिर्फ एक परिंदा नहीं बोल रहा था, अब एक पूरी सल्तनत का जिक्र शुरू हो चुका था। और इस सल्तनत की मलका थी बिल्कीस। हुलूद की बात खत्म हुई तो लम्हा भर के लिए फजा जैसे रुक गई। ये खबर एक ऐसे निजाम के बारे में थी जो मजबूत था मगर गलत रुख पर जा रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनी और फौरन एक चीज समझ गए, ये सिर्फ किसी कौम का मसला नहीं, ये एक फिक्र का मसला है। हुदहुद ने जिस मुल्क का नाम लिया था वो एक मशहूर सरजमीन सबा था। सफर करने वाले लोग, ताजिरों के काफिले और दूर दूर तक फैले रास्ते। ये कोई छोटी बस्ती नहीं थी कि जिसे नजरअंदाज किया जाए। ये एक ताकतवर रियासत और इस रियासत की सरबराह एक औरत थी। सबा के दारुल हुकूमत में दिन मामूल के मुताबिक शुरू हुआ था। सूरज निकलते ही शहर जाग गया। महल के दरवाजों पर पहरे सख्त और दूर से देखने वाला भी समझ जाता कि यह कोई आम हुकूमत नहीं। महल के अंदर एक बड़ा हाल था जिसे दरबार कहा जा सकता था। ऊंची छत, सुत्तूनों की कतारें, दीवारों पर नक्शो निगार और दरमियान में वो जगह जहां सोने का तख्त रखा था। तख्त जिसका जिक्र हुदहुद कराया था। वो तख्त महज कुर्सी नहीं था, वो रियासत की शान और ताकत की अलामत थी। मलका बिल्कीस जब दरबार में दाखिल होती, लोग खुद ब खुद खामोश हो जाते। इसके चेहरे पर वो संजीदगी थी जो किसी कमजोर हुक्मरान में नहीं होती। वो रोब से नहीं, समझदारी से हुक्म करती थी। यहां एक बात वाज़ेह है, वो औरत जज्बाती नहीं थी। वो फैसले सोच कर करती थी। वो जानती थी कि एक रियासत सिर्फ जंग से नहीं चलती, रियासत समझदारी से चलती है। लेकिन इस कौम का मसला ताकत नहीं था, उनके पास ताकत थी। मसला ये था कि वो ताकत को किसी सही हकीकत के साथ नहीं जोड़ते थे। उनके यहां एक पुरानी रस्म थी, एक ऐसी रस्म जो नस्लों से चल रही थी। सूरज निकलता और लोग उसे बड़ा समझते, वो इसे रोशनी देने वाला समझते, वो इसे जिंदगी देने वाला समझते, और आहिस्ता आहिस्ता वो इसे सबसे बड़ा समझने लगे। यही वो जगह थी जहां अक्ल फिसलती है। इंसान एक चीज को फायदा पहुंचाते देखता है और फिर उसी के आगे झुकने लगता है। सबा की कौम भी यही कर रही थी। हर बड़े दिन पर, हर खास मौके पर लोग जमा होते और एक मंजर बनता। मलका बिल्कीस, उसके मुशीर, सरदार और अवाम सब सूरज के सामने झुकते। ये रस्म इतनी पुरानी थी कि किसी को अजीब नहीं लगती थी। मलका बिल्कीस ने भी बचपन से यही देखा था। और जब इंसान किसी चीज को नॉर्मल समझ ले तो फिर उसे गलत भी नॉर्मल लगता है। हुदहुद ने यह सब देखा और सोचा, यह कौम इतनी ताकतवर है मगर यह किसके सामने झुक रही है? यही वो सवाल है जो बाद में पूरी कहानी को आगे ले जाएगा। सिब्बा के दरबार में मशीरों की कमी नहीं थी। कुछ मुशीर वो होते हैं जो सिर्फ हां कहते हैं, कुछ वो होते हैं जो सिर्फ जंग की बात करते हैं, कुछ वो होते हैं जो हर चीज को सियासत से देखते हैं। बिल्कीस के पास ये सब लोग मौजूद थे। एक गिरोह हमेशा यही कहता, हम मजबूत हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। दूसरा गिरोह कहता, मामला देखकर चलें, फैसला सोच कर करें। बिल्कीस अक्सर दूसरे गिरोह की बात को तरजीह देती, क्योंकि वो जानती थी कि जंग आसान होती है मगर जंग के बाद रियासत बचाना मुश्किल होता है। यही वो जगह है जहां किस्सा दिलचस्प होता है, क्योंकि अब दो दुनिया सामने थी। एक तरफ सिब्बा, एक मजबूत रियासत, एक ताकतवर मलका, एक बड़ा तख्त, लेकिन गलत सिमत। दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनके पास ताकत भी थी और हक भी। और अब सवाल यह था कि उस ताकतवर मलका को किस तरह हक की तरफ बुलाएंगे, तलवार से या अकल से? ये वो पॉइंट है जहां आम हुक्मरान फैसला तलवार से करते हैं, मगर नबी अलैहिस्सलाम का तरीका मुख्तलिफ होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ अब अगला कदम आना था। हुदहुद की खबर ने दरबार में जो खामोशी बनाई थी, अब वो खामोशी फैसला मांग रही थी। और फैसला ये था, पहले जंग नहीं, पहले पैगाम। अगले मंजर की तैयारी अब आप जरा तसव्वुर करें। एक नबी अलैहिस्सलाम, बादशाह, अपने कागज पर चंद जुमले लिखवा रहे हैं। वो जुमले मलका के तख्त से ज्यादा ताकतवर साबित होंगे, क्योंकि तख्त जिस्मों पर हुकूमत करता है मगर पैगाम दिलों पर असर करता है। और फिर वही हुदहुद जो अभी अभी एक बड़ी खबर लेकर आया था, अब एक नई जिम्मेदारी के साथ खत लेकर दोबारा उड़ा। उसकी चोंच में कोई आम पैगाम नहीं था,
बल्कि अल्लाह और उसके नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मलका बिल्कीस को हिदायत की तरफ पैगाम का खत था। खत किसी लश्कर से कम नहीं था। हुदहुद ने लंबा सफर तय किया, मैदान, पहाड़ों के साए और आखिरकार सबा की सरहदें। वो शहर के ऊपर पहुंचा। हुदहुद रुका नहीं, वो सीधा महल की सिमत बढ़ा। महल के अंदर खामोशी से हुदहुद ने खत वहां रखा जहां वो नजर से ओझल ना रहे, और खुद एक तरफ हट गया। कुछ देर बाद बिल्कीस ने खत देखा। वो खत उठाकर देखने लगी और फिर पढ़ा। जैसे जैसे अल्फाज उसके जहन में उतरते गए, उसके चेहरे की संजीदगी बढ़ती गई। ये कोई धमकी नहीं थी, ना ही किसी फतह का ऐलान। ये एक दावत थी। बिल्कीस ने फौरन हुक्म दिया कि दरबार लगाया जाए। ये कोई मामूली दरबार नहीं था, ये वो दरबार था जहां रियासत की सिमत तय होनी थी। मशीरों को बुलाया गया, सरदार आए, फौज के नुमाइंदे मौजूद थे। मलका बिल्कीस ने खत सबके सामने रखा और बोली, ये खत एक ऐसे बादशाह की तरफ से है जिसके बारे में हमने सुना जरूर था, मगर आज उसने खुद बात की है। वो बोली, मैं कोई फैसला अकेली नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूं कि तुम सब अपनी राय दो। एक मुशीर आगे आया, ये साफ बात है, वो हमें झिकाना चाहता है। ये इज्जत का सवाल है, हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। दूसरा बोला, हमारी फौज कमजोर नहीं, हम लड़ सकते हैं, पीछे हटना हमारी रिवायत नहीं। कुछ ने हां में सर हिलाया। फिर एक बूढ़े मुशीर ने मध्यम आवाज में बोला, हमने खत पढ़ा है मगर खत लाने वाले को नहीं देखा। ये बात मामूली नहीं। अगर वो बगैर कासिद के हम तक पैगाम पहुंचा सकता है तो जंग में वो क्या कर सकता है, ये सोचना होगा। कमरे में खामोशी फैल गई। मलका बिल्कीस ने सबकी बात सुनी। ना वो जज्बात में बही, न फौरन इनकार किया। उसने कहा, तारीख बताती है कि जब बादशाह हमला करते हैं तो शहर तबाह हो जाते हैं और इज्जतदार लोग जलील हो जाते हैं। वो फिर साफ लफ्जों में बोली, मैं जंग से पहले एक और रास्ता आजमाना चाहती हूं। सब ने उसकी तरफ देखा। हम तोहफा भेजेंगे, हम देखेंगे कि उसका मकसद क्या है, ताकत या बात। किसी ने एतराज नहीं किया। यह बिल्कीस का तरीका था, पहले हालात को समझना फिर कदम उठाना। हुक्म जारी हुआ। कारीगर दिन रात काम करने लगे। सोना, कीमती पत्थर, नफीस कारीगरी। यह तोहफा सिर्फ दौलत नहीं था, यह नीयत का इम्तिहान था। जब तोहफा तैयार हुआ तो वाकई शानदार था, ऐसा कि देखने वाला ठहर जाए। बिल्कीस ने कासिदों को बुलाया। उनके साथ एक तजुर्बाकार कमांडर भी रवाना किया गया। हिदायत साफ थी, तोहफा दो और देखो वो किस तरह रद्द अमल देता है। उसकी फौज, उसका निजाम, सब पर नजर रखना और समझ कर आना। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद पहले ही खबर दे चुका था। वो जानते थे कि तोहफा आ रहा है और उसके पीछे असल मकसद क्या है। उन्होंने हुक्म दी कि फौज तैयार रहे, लेकिन यह तैयारी जंग के लिए नहीं थी, ये असर के लिए थी। कासिदों का इस्तकबाल ऐसा होना था कि बात खुद समझ आ जाए। जब काफिला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सरहद के करीब पहुंचा तो उनकी रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई। सामने वो मंजर था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। इंसानों की कतारें, जानवर और फजा में परिंदों के गौल, हर चीज अपनी जगह पर पहरा दे रही थी। कासिद एक दूसरे को देखने लगे। कमांडर की आंखों में हिसाब बदलने लगा। ये वो ताकत थी जिसे ललकारना आसान नहीं था। तोहफा पहुंचाया गया। कुछ देर इंतजार हुआ, फिर पैगाम आया, तोहफा वापस ले जाओ। कासिद सन्नाटे में आ गए। पैगाम में मजीद कहा गया, जो मुझे अल्लाह ने दिया है वो उससे बेहतर है जो तुम लाए हो। कासिदों के वापस लौटते ही सबा के दरबार में हलचल मच गई। ये अब महज बातों का मामला नहीं रहा था। मलका बिल्कीस जान चुकी थी कि सामने कोई आम हुक्मरान नहीं। वो खामोशी से बैठी रही और आखिरकार फैसला सुनाया, मैं खुद जाकर देखूंगी। यह फैसला जंग का ऐलान नहीं था, यह हकीकत जानने की ख्वाहिश थी। और इधर दूसरी तरफ खबर पहुंच चुकी थी कि मलका खुद सफर पर निकल रही है।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में एक नजर अपने इर्द गिर्द डाली। ये वो दरबार था जहां इंसान भी थे, जिन भी, और वो लोग भी जिनके पास खास इल्म था। उन्होंने कहा, मलका आ रही है, मगर उसके पहुंचने से पहले मैं उसका सोने का तख्त, जिस पर उसको बहुत गुरूर है, यहां देखना चाहता हूं। यह जुमला किसी मुकाबले के लिए नहीं था, यह एक इम्तिहान था। इम्तिहान मलका का नहीं, इम्तिहान इस सोच का जो तख्त को सब कुछ समझती है। पहली आवाज एक ताकतवर जिन, जिसको अपनी कुव्वत पर नाज था, आगे बढ़ा और सर झुकाकर बोला, है अल्लाह के प्यारे नबी, मैं वो तख्त कुल सुबह तक यहां ला सकता हूं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, यह बहुत ज्यादा वक्त है, मुझे इससे भी कम वक्त में वो तख्त यहां पर चाहिए, क्योंकि मलका किस वक्त यहां पहुंच जाए ये कोई अंदाजा नहीं। फिर दूसरा ताकतवर जिन आगे आया और उसने अदब से सर झुकाकर कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं वो तख्त आपके दरबार से उठने से पहले यहां ला सकता हूं, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं। कमरे में सरगोशियां हुई। ये बात इंसानी हिसाब से नाकाबिले यकीन थी। इतना बड़ा तख्त इतने फासले से, और वो भी इतनी जल्दी। इसी लम्हे एक और शख्स, जिसकी आवाज में न जोश था, गुरूर, बस एतमाद था, आगे आया और बड़े अदब से सर झुकाकर बोला, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, अगर आप हुक्म दें तो मैं वो तख्त आंख झपकने से भी पहले यहां ला सकता हूं। ये जुमला कमरे में गूंज गया। सब ने एक दूसरे को देखा। ये बात ताकत की नहीं थी, ये इल्म की बात थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने असी बात को कबूल किया। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसे लफ्जों में बयान करना आसान नहीं। वो लम्हा कोई शोर नहीं हुआ, कोई हरकत नजर नहीं आई। बस अचानक दरबार के ऐन सामने मलका बिल्कीस का सोने वाला तख्त मौजूद था, पूरा वैसा ही जैसा सबा में था, मगर अब यहां एक पल के लिए हर जबान बंद हो गई। ये वो लम्हा था जहां ताकत खामोश हो जाती है। हजरत सुलेमान ने तख्त को देखा। यह तख्त सोने और नक्शो निगार का मजमुआ था, मगर उस पर एक निशान था, वो निशान जिसके सामने लोग झुकते थे। उन्होंने हुक्म दिया, इसमें कुछ तब्दीली करो। ये तब्दीली तोड़ फोड़ नहीं थी, कुछ निशान बदल दिए गए। मकसद ये देखना था कि इंसान चीज को पहचानता है या हकीकत को। इसी दौरान एक और हुक्म दिया गया, एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जो देखने में पानी लगे मगर हो शीशा, साफ शफाफ, ऐसा कि इंसान धोखा खा जाए। ये सब किसी फरेब के लिए नहीं था, ये सोच को झुंझोड़ने के लिए था। कुछ दिन बाद मलका बिल्कीस पहुंच गई। उसने वो सब अपनी आंखों से देखा जो कासिदों ने बयान किया था। फौज की तरतीब, खामोश ताकत। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यहां सब कुछ मुख्तलिफ था। उसे दरबार की तरफ ले जाया गया। सामने वही तख्त रखा था। बिल्कीस रुक गई, वो गौर से देखती रही, फिर बोली, ये मेरे तख्त जैसा है। वो यकीन से सोच समझकर बोली। यही वो लम्हा था जहां गुरूर नहीं बल्कि समझ काम आई। उसे आगे बढ़ने को कहा गया। सामने वो शफाफ रास्ता था। उसे लगा कि नीचे पानी है। वो रुकी और कदम संभाल कर उठाया। तब उसे एहसास हुआ कि ये पानी नहीं, ये शीशा था। यहां उसके जहन में एक बात गूंजी, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। मलका बिल्कीस खामोश खड़ी थी। उसके सामने ना कोई जंग थी, ना कोई धमकी, ना कोई जबरदस्ती, बस एक हकीकत जो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर उतर रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न ऊंची आवाज में बात की, न किसी बर्तरी का इजहार किया। उन्होंने नरमी से कहा, ये सब जो तुम देख रही हो, ये तख्त, ये महल, ये ताकत, ये सब अपनी जात में कुछ भी नहीं। सूरज जिसे तुम सजदा करती रही हो, वो भी एक मखलूक है। वो खुद रोशनी का मालिक नहीं, वो भी अल्लाह पाक के हुक्म का पाबंद है। वो निकलता है और डूब जाता है, और वो भी अल्लाह के हुक्म से चलता है, जिसने हमें और तुम्हें पैदा किया है।
उनके लहजे में कोई सख्ती नहीं थी, बस समझाना था। उन्होंने आगे कहा, असल ताकत किसी तख्त में नहीं, किसी फौज में नहीं और किसी रोशनी में भी नहीं। असल ताकत सिर्फ एक है और वो है सब को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत। मलका बिल्कीस ने सर झुका लिया। ये झुकना किसी इंसान के सामने नहीं था, ये झुकना उस हकीकत के सामने था जिसे वो अब खुद देख चुकी थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, मैंने अपने साथ खुद ज्यादती की थी। मैंने उस चीज को बड़ा मान लिया जो खुद मोहताज थी। आज मुझे समझ आ गया है कि जिसके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता, वही असल रब अल्लाह रब्बुल इज्जत है। ये कहते हुए उसकी आवाज में कोई खौफ नहीं था, बस सुकून था। उसने अपने मशीरों की तरफ देखा और कहा, तुम भी वही मान लो जो मैंने मान लिया है। यही सच है, यही असल रास्ता है। यह फैसला किसी दबाव का नतीजा नहीं था, यह फैसला समझ का नतीजा था। यहां न कोई तलवार उठी, न कोई खून बहा, न कोई सल्तनत टूटी। बस एक दिल बदला और उसके साथ एक कौम की समत बदल गई। हजरत सुलेमान ने उस लम्हे कोई फख्र नहीं किया। उन्होंने हर कामयाबी की तरह उसे भी उसी की तरफ लौटा दिया जिसकी ये थी। और यूं एक तख्त जो कभी गुरूर की अलामत था, अब एक सबक बन गया। यह किस्सा हमें यही सिखाता है कि ताकत किसी के पास भी हो सकती है, मगर हिदायत सिर्फ उसके पास होती है जो सच को मानने की हिम्मत रखता है। और जब इंसान सच मान लेता है तो वो हार नहीं जाता, वो असल में जीत जाता है। ये थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस के तख्त की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें जंग नहीं बल्कि समझ है, और यही सबसे बड़ी फतह होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को अच्छी लगी है तो उसको जरूर दूसरों तक फैलाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद ईमान अफरोज सच्ची कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।